Hello friends, let's start resume the classes, the yesterday classes. Yesterday we have studied the basic networks and its function and where it is, how it is used. Now today we are going to take some examples and solve the problem. It is more clear and for that we have go to the solve the example. First of all, let's go back to the basic things in which we had in which already we have some studies of parameters. So let's quick review on it. I'm sharing the screen. Just wait. Yeah. So begin with this. Start with the lecture for a lecture. Just quick review of the last lecture we have studied. So this is the basic two-port network in which we have studied the jet parameters. In jet parameters, I have already told you that jet1, this is the view to solve the complex problem in which we have defined the jet11, jet12, jet21, and jet2. And after that, we have gone to this matrix form. In matrix form, we have written like this. In matrix form, we have written like this. The input voltage and output voltage. This is a 2 by 2 matrix in which I1 and I2 is the input and output current as well. So before we are starting the example, let's go through this nomenclature. Z11 is called the open circuit voltage. Z12 is called the open circuit transfer impedance from port 1 to port 2. Z21 is impedance port 2 to port 1, and Z22 is the open circuit impedance. Before take the example, uh, you have to remember either this matrix form formula or you simply remember this equation 1 and equation 2, where we have to put the value of suffix values of the Z11, Z22, and so on. Let's start with this example. So this is the first example of the jet parameter, where you have to find jet parameter of the circuit. So this is the basic equation of the jet parameter. If you compare this example with the basic two-port network or jet port network, so you have to compare. See, this is the rectangle box where all the parameters are written over here. The incoming current, the terminal voltage V1 and V2 as well. So like this, simple, you have to compare the basic things. So you have to find the jet parameter of the circuit. So here, this terminal voltage V1 and V2, and these are the lump parameter which is connected to the network. It may be, it is a very simple form, but in practically this kind of values, lot of this kind of values are connected in the network. कहने का मतलब ये है कि सिंपल नेटवर्क, ये एक सिंपल नेटवर्क है जिसे हम लोग अभी सॉल्व करके देखेंगे, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकल सर्किट में ये बहुत सारे लंप पैरामीटर्स में होते हैं जिसको कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे. तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें और सर्किट को रीड्रॉ करें, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1, first you have to redraw the circuit like this. This is the method of solving the circuit. So once we redraw the circuit, you have to measure the current I1 and
the input current I1 and draw the circuit, like, and I2 mention I2 is 0. I2 is 0 means this open circuit, this I2 is 0 means there is no current is incoming current is there. So you have to first of all put the I2 is 0. Once you put the I2 is 0, you have to redraw the circuit like this, like this. So if I2 is 0, then our circuit will become like this. So you have to first of all find out this branch current and this branch current. Either you maintain IAX or IAB, whatever you want to nomenclature of this branch current you have to show. But the simple way IAB and IB is there. So इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं और हमने क्या किया I2 को 0 कर दिया. I2 को 0 करने के बाद इस सर्किट को हमने फिर से रिस्टार्ट किया जो ऐसा दिखेगा. क्योंकि इसके बाद इधर अगर कोई ब्रांच रहता करंट I2 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा ब्रांच का कोई मतलब नहीं रहेगा. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैसे निकालना. V1 is equal to 120 IB. अगर इस सर्किट में हम अगर देखें तो V1 अगर यहाँ पे हम देखें तो एक V1 is equal to this V is equal to I into R simply. So this branch current is IB and the resistance. So if V1 is simply we have written the V1 is equal to IB into 120, right? And V2 is equal to this branch current is equal to 240 into 240 ohm resistance and multiply with this current of like this. We have calculate the IB and I. This is very simple thing. V1, V3, you have to just Ohm's law we have compare this type of problem, right? Once we have identified this V1, V2, IB, IA, then substitute the equation y into 2, right? IB is equal to in equation 1, V1 is equal to 120 IB. So directly you have to put the equation of the value of IB on that and simplify this current is V1 by 2 is equal to 1. इसी तरह Z21 भी निकाल सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे Z1 और एक तरीका है, सिंपल इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख लें जैसे कि बताया गया था. इस वाले फॉर्म में लिख लें. यहाँ पे V1 Z1 I1 is equal to इस वाले फॉर्मूला में और I2 को हम 0 करते हैं तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा. I1 is equal Z11 is equal to हो जाएगा V1 by I1, V1 by I1 Z11 is equal to V1 by I1 0 हो जाएगा. ये सिंपल नोटेशन है. और यहाँ पे कब जब ये I2 0 है. इसी तरह यहाँ पे Z21 निकल जाएगा तो V2 और I1 V2 by I1 हम लोग इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं और ये I2 उस केस में I2 0 हो जाएगा. एक बार हमको क्या करना I1 को 0 कर देना है. दोनों साइड का एक ब्रांच करंट को एक बार 0 करके सर्किट को रिटर्न करना है और लिखना है. तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के तहत हम लोग Z11 खुद इम्पीडेंस निकाल दिए, Z11 Z21. इसी तरह ये दो पैरामीटर हमारा निकला जब हम लोग I2 को 0 किए. इसी तरह फिर हम आगे अगर करेंगे तो हमको क्या निकालना होगा, V2 निकल जाएगा और V1 निकल जाएगा. तो इससे हमारा जो IX वहाँ पे डिफाइन किए थे, IY डिफाइन किए थे. इससे हमारा यहाँ पे IX था और IX किए थे, यहाँ पे IY दिए थे और ये IX. और सिंपल ब्रांच करंट हम जो निकालते हैं ओम्स लॉ से V is equal to I into R उससे निकाले और ये सारा कुछ सिंपल कैलकुलेट आप करेंगे. सिंपल कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी. Z22 की मिल गई, Z1 की मिल गई. अब आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में रखना चाहते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से रख देते हैं. ये प्लेस होता है Z11 का तो Z11 आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा कितना निकला था, Z11 हमारा निकला था 84. तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में उसी तरह बना के तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इम्पीडेंस अगर हम बोला जाए कि इम्पीडेंस हमको अगर निकालना है तो इम्पीडेंस हमको इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट का. और ये मैंने बताया था कि ये सर्किट कहाँ पे यूज होता है जनरली. इस तरह का सर्किट का पैरामीटर
पे ये इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस निकालने का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम सर्किट पैरामीटर्स निकालना होता है, तो इम्पीडेंस हम निकाल के देखते हैं। तो ये सिंपल एक तरीका है। तो यहाँ से आपको इस तरह का सॉल्व एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं। अब अगर कोई सॉल्व, अगर इस तरह का कोई सर्किट हो, यहाँ पे तो डिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ पे देखिए एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है। अब इस तरह से अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा, तो इस तरह से मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास नेटवर्क जो ब्लॉक्स होता है वो सिंपल नहीं होता है, वो जनरली बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अब देखिए यहाँ पे लंप, दीज आर कॉल्ड लंप पैरामीटर। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, और एक वोल्टेज इंडिपेंडेंट करंट इंडिपेंडेंट सोर्स भी है। अगर इस तरीके का ये भी बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल है। इस तरह से नेटवर्क अगर हमारे पास बढ़ता जाए तो कैसे नहीं, सिंपल फार्मूला फिर वही निकालना है। एक बार हमको क्या करना है, उस इक्वेशन में I2 को 0 कर देना है। I2 को 0 करने के बाद हम क्या करना है, सर्किट को रीड्रॉन करना है। तो सर्किट को आप जब रीड्रॉन करोगे, जब सर्किट को रीड्रॉन करोगे तो आपका सर्किट कुछ इस तरह रहेगा। ये I2 हमारा I1, इस समय हम I1 को 0 कर दें, I1 को 0 किए, मैं ओपन सर्किट पोर्ट 1 को ओपन कर दिया। पोर्ट 1 को ओपन करने के बाद हमारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ है। अब इसमें कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं रेजिस्टेंस के, बाकी सारे। जब हम इस साइड वाले I1 को 0 करेंगे तो बाकी का जो कनेक्शन था I1 को 0 करने के बाद कि मेरा बेसिक सर्किट था, हम I1 को 0 कर दिए। I1 को 0 किए तो ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर का वैल्यू, इंडक्टर का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये इसके बाद इधर ये I1 इधर आएगा नहीं, तो हमारे पास जो बेसिक सर्किट बचेगा, तो सर्किट को रीड ऑन करेंगे तो ये यहाँ से बनेगा। अगर हम I1 को 0 किए तो हमारे पास ये इधर I1 को हम 0 कर दिए, हमारा जो कुछ सर्किट बचेगा, सॉरी I2 को 0 किया। I2 को 0 करने के बाद हमारे पास जो सर्किट बचेगा, I2 को 0 कर दिया तो हमारा कुछ सर्किट इस तरह से, बाकी सारी कुछ बच जाएगी। और ये हमारा I1 को 0 करेंगे तो बनेगा, और ये अगर I2 को 0 करेंगे तो ये हमारा सर्किट बनेगा। तो इस तरह से हम एग्जांपल जब देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा सर्किट है। एक बार हमें क्या करना है, I2 को 0 कर देना है, और एक बार हमारे I2 को 0 करने के बाद Z11 निकाल लेना है और Z21 निकाल देना है। बाकी आप फार्मूला में डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं, V1 by I1। V1 की जो वैल्यू है उसको आप लिख दीजिए, I1 की जो वैल्यू है उसको आप लिख दीजिए और सिंपल लिख दीजिए। और V2 एक्चुअली शॉर्ट सर्किट का, Z21 0 हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होता है तो 0 होता है, आपको तो पहले से पता है। और इसी तरह फिर हमारे पास इसका I1 को 0 करेंगे, V1 is equal to I into R। R का वैल्यू ये हमारे पास पूरा का पूरा ये यहाँ पे दिया हुआ है इंडिपेंडेंट। V1 is equal to डायरेक्ट टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू सिंपल दिया हुआ 10 into I2, यहाँ पे लिख देंगे। फॉर्मूला में पुट करेंगे, Z12 V1 by I1 is equal to 10 of I2 की वैल्यू इसी तरह लिख देंगे। इसी तरह इसको मैट्रिक्स फॉर्म में निकालने के बाद ये सारे वैल्यू को जब आप लोग इसको 2-3 तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है जो कि बेसिक बिगिनर के लिए बहुत ही सही है, और एग्जाम में भी इसी तरह का आता है। तो आपको सबसे पहले इसके लिए मैं गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट दे दिया हूँ, उसमें आप जाएंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स विद एग्जांपल्स मिलेंगे और कुछ असाइनमेंट भी है। तो आप लोगों को वहाँ पे उसको सॉल्व करके मुझे पोस्ट कर देना है। और याद रखिएगा, अगर मैं उसमें टाइम दूंगा तो फिर उस टाइम को आपको उसको कंप्लीट करके मुझे देना भी है। नेक्स्ट पैरामीटर है वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर आल्सो कॉल्ड, वहाँ पे हम जेट पैरामीटर को हम लोग कहते थे, जेट पैरामीटर को हम लोग इम्पीडेंस निकालने के लिए यूज करते थे, और उसको इम्पीडेंस पैरामीटर भी बोला जाता था। उसी तरह हमारा वाई पैरामीटर है, वाई पैरामीटर को एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। एंड इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ द एडमिटेंस is Siemens, and it is short by S. And if we refer the terms in terms of this black box, the circuit like this, again जैसे बताया था यहाँ पे, वहाँ पे जेट पैरामीटर में जेट लिखते थे, इसका
इसका नोमेनक्लेचर वाई से करते हैं, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल इसी बॉक्स के फॉर्म में लिखते जाना है। और अगर इसके बाद अगर इसका टर्म एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट हम इस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो ये लिखना। ये एक्चुअली में मैट्रिक्स फॉर्म का टू वैल्यू का मैट्रिक्स है, रो को कॉलम से गुणा करेंगे तो यही आएगा, ये इक्वेशन दो इक्वेशन लिखता है। तो अभी कोई भी सॉल्यूशन हम करने जाएंगे तो क्या करेंगे, आप सिंपल ये यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, ठीक है, या इक्वेशन को आप यहाँ से सॉल्व कर लो। और अगर हम v2 को 0 करेंगे तो v2 वाले टर्म में ये 0 हो जाएगा, तो y11 इज इक्वल टू हो जाएगा i1 डिवाइडेड बाय v1। तो इसी फार्मूले से सारा कुछ भी रटने का जरूरत नहीं, इसी फार्मूले से you can derive all the z y11 y12 y21 y22। so this is the some basic thumb rules of solving the parameters, network parameters। ये फार्मूला हमको यहाँ से मिलके जैसे मैंने बताया, ये जो जैसे बताया बस फार्मूला है। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे कैसे निकाला जाता है। ये y पैरामीटर में सिंपल सर्किट दिया हुआ है, तो y पैरामीटर मुझे निकालना है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमने क्या किया, v2 को 0 कर दिया। v2 को 0 करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे इस तरह से v1 इज इक्वल टू निकालिएगा तो ये 20/i1 होगा। ये इक्वेशन जो मैंने बताया था उस इक्वेशन में रख दीजिए, और जो वैल्यू है ये सिंपल v1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम सर्किट को ये IA का मतलब हो गया ये वाला ब्रांच करेंगे, IA इज इक्वल टू 5/21 आ गया, और ये इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन 2 में रखिए तो यहाँ से हमारा v11 आ जाएगा, और इसका यूनिट सीमेंस होता है। तो इस तरह से हम सारे वैल्यू v1 v21 ऐसा करके हम सारे वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह y21 के वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो y21 इज इक्वल टू i2/v1, i2 की वैल्यू जो i और जो v1 की वैल्यू है उसको आप रख देंगे तो सीधा सीधा ये डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम v1 को 0 करेंगे, सर्किट को फिर से रिटर्न करेंगे, और सिंपल वही बेसिक फार्मूला में अगर हम रखेंगे तो ये इक्वेशन 3 और 4 बनेगा। और आप क्या करो, 3 इक्वेशन का 3 का वैल्यू को इक्वेशन 4 में रख दो तो हमारे पास 2 निकल आएगा, y22 की वैल्यू निकल आएगी और y21 की वैल्यू निकल जाएगी। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के ये सॉल्यूशन हमको दिखाते हैं। ये सॉल्यूशन अब y पैरामीटर, अगर सपोज एक y पैरामीटर मुझे निकालना है, ये सब आपको अपने असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन क्वेश्चन को आप लगाएंगे। डिफरेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल अपने आप आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला में रखेंगे तो ये सारा कुछ अपने आप आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। कोई कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। जैसा मैंने बताया है पीछे आपको बेसिक पे जाना है, बेसिक सर्किट को अच्छे से दिमाग में रखना है, और उसके बाद उस बेसिक सर्किट में किसी भी तरह का कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एक दिया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इस सर्किट में ये सारे लॉ पैरामीटर्स हैं, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है y पैरामीटर्स निकालने के लिए जो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v2 को 0 करेंगे, सर्किट को फिर से रिटर्न करेंगे, और इसका मतलब हो गया यहाँ पे सर्किट को जब रिटर्न कर दिए तो i की वैल्यू 0 हो गई। तो v1 इज इक्वल टू दिस मच एंड y11 इस तरह से निकाले और y12 इस तरह से निकाले। i1 की वैल्यू i1/v1, इस सर्किट से हमने i1 निकाला और v1 निकाला जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था, और इसके हिसाब से हमारे यहाँ पे जो निकला था ये यहाँ पे निकला। इस तरह से हम यहाँ पे हमको पैरामीटर मिल जाएगा। ये एकदम सिंपल छोटा सा एग्जांपल है बिगिनर के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए, और इससे आप पकड़ के आपको इससे ज्यादा का एग्जाम में इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट पूछा नहीं जाता है। फिर भी आप लोग जो असाइनमेंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ, सॉल्यूशन आपको पहले बनाना है, और नहीं बनेगा फिर मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये सारे अपने खुद से ट्राई करना है।
इसी तरह फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, V1 को 0 करेंगे और सिंपल वही सारे स्टेप हमें लगाते जाना, फॉर्मूला रखना है और जो वैल्यूज है I2 की V2 की रखनी जानी है और ये सारे आपके Y22 और Y21 की वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे Y पैरामीटर, Z पैरामीटर और Y पैरामीटर का सॉल्यूशन कहता है। एक बार आपको अगर Z पैरामीटर निकालना आ गया तो Y पैरामीटर और आगे का फर्दर बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि सारे स्टेप्स वैसे ही हमको कैलकुलेट करने। अब आपके पास यहाँ पे फिर है ABCD पैरामीटर, जैसे कि मैं पहले ही बताया था, दिस पैरामीटर आल्सो कॉल्ड ए ट्रांसमिशन पैरामीटर एंड इट इज यूज्ड इन अ ट्रांसमिशन लाइन टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो ये T पैरामीटर उसको T पैरामीटर के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फिर वैसे ही मैंने लिख दिया, इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर को ABCD पैरामीटर भी बोला जाता है और ABCD से इसको डिनोट करते हैं। बाकी सब्सक्रिप्ट इसमें 1 1 1 2 2 1 V2 सारे सर्किट पैरामीटर ऐसे ही है, इसको आप कर सकते हैं यहाँ पे। और इक्वेशन बनेगा तो इसमें इक्वेशन ये देखिए, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में कभी भी इसको यूज करते हैं तो ये करंट जो है, यहाँ पे गौर करने वाली बात यहाँ पे ये तो बच्चे चेक करेंगे, ये करंट जो है ये ट्रांसमिशन लाइन में यूज, ये करंट हमेशा कभी भी नेटवर्क में आता है, वन एंड से दूसरे एंड पे ये निकलेगा, ये करंट ये I2 जो हमेशा निकलेगा। तो ये जब लीव करेगा तो हम लोग यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखेंगे तो ये सर्किट माइनस, ये यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर ये एंटर होता तो अगर ABCD पैरामीटर में Z पैरामीटर में ये करंट आपको अंदर को आ रही होती, तो इसलिए क्या होता है, वो शमिंग होता है, शमिंग करते हैं तो यहाँ पे लीव कर रहा है नेटवर्क से, इसलिए लीव कर रहा है तो हम लोग इसको माइनस करते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपका बन गया इस फिगर को देखने के बाद तो कहीं आपको फिर आगे दिक्कत, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है मैट्रिक्स फॉर्म में। जैसे बताया था कि यहाँ पे देखिए ये V2 I2 की जगह में क्या था, यहाँ पे हमारा V2 माइनस लेंगे, क्योंकि बताया क्योंकि ये माइनस लिया जाता है। The T parameter that we want to determine ABCD parameter where A and D are the dimensions in this, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और B और C पैरामीटर्स ओम्स एंड सीमेंस के इसका यूनिट्स होता है। वी कैन एवरेट, और इसको करने का तरीका, इसको निकालने के लिए तरीका है, हम लोग सबसे पहले क्या है I2 को 0 करेंगे और V2 को 0 करेंगे, I2 और V2 को हम लोग 0 करेंगे। इनपुट पोर्ट उसको हमको ओपन करना है और आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करना है। ये दोनों बातें इसमें ध्यान रखने वाली है कि I2 और V2 का क्या करना है। अगर इनको फिर सिंपल I2 और इक्वेशन में, जैसे कि पहले की बताया, इस वाले इक्वेशन में आपको इसमें I2 और V2 अगर आप 0 करोगे तो ये फार्मूला निकल के आएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद भी कर सकते हो, और याद नहीं करने का मन है तो आप बेसिकली आपको उसमें I2 और V2 को 0 कर दो तो ये निकल जाएगा, ABCD पैरामीटर निकल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसमिशन पैरामीटर नेटवर्क is reciprocal if AD minus BD is equal to, एक ही एजम्पशन है जो हम लोग देख के चलेंगे, जो एग्जांपल आएगा उसको देखेंगे कैसे करना है। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सिंपल नेटवर्क मैंने रखा है समझने के लिए, बिगिनर के लिए कैसे इसको करने करेंगे। ज्यादातर मेरे क्वेश्चन में आपको एक ही सर्किट दिया हुआ है और एक ही सर्किट से ABCD पैरामीटर अलग अलग निकालेंगे, इससे क्या होगा, ये ज्यादातर समझ में आएगा। अब अगर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो ABCD पैरामीटर में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले क्या करो, सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बार सर्किट को रीड्राउन करो। सॉल्यूशन निकालने के लिए I2 को मैंने 0 कर दिया, तो I2 को 0 करने के बाद हमारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और इसके बाद हम यहाँ पे I2 को 0 करने के बाद V2 जब I2 को 0 करके हम इक्वेशन में रखेंगे तो VT is equal to 10I1, C is equal to I1 by V2, और इसका यूनिट के साथ अगर हम इसको लिखें तो वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह V1 is equal to 2I2 V2, और यहाँ पे जो हमने निकाला था V2 की वैल्यू उसको रख देंगे, तो ये हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह आएगा, यहाँ से हमें A और C की वैल्यू मिल गई। अब फिर से हम क्या करेंगे, सर्किट को
अब हमें केस दूसरा में V2 को 0 कर देना है। V2 को 0 करने के बाद सर्किट हमारा इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ से हमें I1 जहाँ से हमें D1 की वैल्यू मिल जाएगी और V की वैल्यू मिल जाएगी। सेम सारे स्टेप्स वही नहीं रखने हैं, सिंपल लगा के आपको देखना है सवाल कि एक ही वैल्यू कैसे आ रहा है, और उसके बाद आप सिंपल जैसे मैंने बताया है ये सारे स्टेप आपको लिखने दिए हैं वहाँ पे। तो ये सिंपल मैंने फार्मूले में बता दिया कैसे रखना है, और ये फार्मूले में हम रखेंगे तो सारा कुछ आपको अपने आप ये सारा कुछ कैसे हो रहा है। और इनके बाद जितना ABCD के वैल्यू आई उसको आप रख दो। इसका नोमेनक्लेचर T से होता है, इसको डिनोट T से किया जाता है। तो ये आपका टोटल ABCD पैरामीटर ये आपका हो गया ABCD पैरामीटर्स हो गया। तो ABCD पैरामीटर कैसे निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, वहाँ पे यूज होता है, ये सारे एग्जांपल्स आपको सब सारे सब्जेक्ट से मिल जाएगा यहाँ पे किस तरह से निकालते हैं। इसके बाद एक हमारा है टर्मिनेट टू पुट नेटवर्क्स। ये terminate to put networks, typically application of this type of network is given below like this. The model of this type of parameter is like this. आप यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे ZG और एक ZL यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन, टिपिकल एप्लीकेशन जो है ये सर्किट का पोर्ट 1 को हमको लोड करना और पोर्ट 2 को लोड करना है। अगर मान लो पोर्ट 1 हमने इसको बोला, पोर्ट 2 इसको बोला, तो दोनों में देखिए दो नोटेशन दिया हुआ, ZG इम्पीडेंस दिया हुआ और ZL दिया हुआ। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी भी नेटवर्क में अगर लोडिंग हमें करना, लोड्स अगर लगे हुए हैं, तो उस ऐसे नेटवर्क पोर्ट नेटवर्क से पहले और बाद में अगर लोड है तो उस लोड को किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अगर लोड लगा हुआ है तो लोड का वैल्यू को पोर्ट नेटवर्क के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, ये सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे इस टू पोर्ट नेटवर्क में एक बार हम कुछ क्वेश्चन निकाल के देखेंगे तो ये पता चलेगा यहाँ पे आगे। तो जो पहले ये यहाँ पे जो हमने पहले ZG जो दो लोड लगाए थे इनपुट पोर्ट पे और आउटपुट पोर्ट में, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसको हम लोग कैसे क्या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ZG जैसे आप देख रहे हैं, ZG is represent the terminal impedance of the source and VG is the internal voltage of the source and ZL is the load impedance। तो अगर ये लोड इम्पिडेंस और इंटरनल इम्पिडेंस अगर किसी भी नेटवर्क का है तो उसको हम रहेगा ही, किसी भी नेटवर्क में अगर हमें निकालना है, उसी वैल्यू अगर निकालनी है तो वहाँ पे हम इसका बेसिकली इस्तेमाल करेंगे, इसको फिशिंग करेंगे। There are the few characteristics of that of this terminate network and some of them are like this. Yeah, characteristic है input impedance का मतलब हो गया अगर नेटवर्क ऐसा लगा हुआ है फिर ये input impedance अगर हम इसको बोलेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो इसको हम लोग कहेंगे इनपुट साइड में है, तो इनपुट साइड में impedance is equal to R is equal to V by I होता है इम्पीडेंस में, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे V1 by I1 हो जाएगा। I2 is Z आउटपुट इम्पीडेंस, इसी तरह हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। करंट गेन इसी तरह से निकाल सकते हैं। बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द इनपुट करंट द आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। वोल्टेज गेन हम निकालना है तो इस तरह से निकालना। These are some characteristics of the others. You can say that sort of formula of finding directly the voltage gain, overall voltage gain, current gain, output impedance, input impedance. So where we have find all these things. And some example of the two-port parameter equation, either the Z or Y. This is basically the combination of the Y parameter and the Z parameter. You can say that basically it involves Z parameter also and Y parameter also. So you can say that it is nothing but the mixture of the Z parameter and Y parameter. So by this equation you can easily see this. By solving once and the KVL input
input of this one. If we want to the input of the circuit means V2 and V1 and V2, we have to find by the using of KVL equation, and this V1 is equal to VG I1 ZG and VG is equal to minus I1 I2, and from this equation all the characteristics can be oriented like voltage gain, current gate, input voltage, impedances of the input and impedances of the output. You can find all these things by using this formula. Let's say one example. Take one example for the two-port network. Shown below, obtain the suitable values of RS. ये value हमें निकालना है, such that the maximum power is available at the input terminal. The Z parameter of the two-port network is given like that. एक Z parameter इस network का दिया हुआ है, जो इस तरीके का है. हमें ये निकालना है कि minimum suitable value इस RS का क्या होगा. With to obtain the stable value of RS as the maximum power. With RS 5, just with RS is equal to 5 ohm, what will the value of V2 by Vs? We have to find that. तो सॉल्यूशन के इक्वेशन में लिखेंगे तो जो वैल्यू आपको मैट्रिक्स ऑफ फॉर्म में Z पैरामीटर का दिया हुआ है, तो आप वहां से इसको सिंपल इक्वेशन में आप रखोगे. तो V1 is equal to Z11 का वैल्यू दिया हुआ है, तो Z11 का वैल्यू 6 है, Z12 का वैल्यू 2 है, Z22 का वैल्यू Z21 का वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 4 है. तो इसको हम सिंपल इक्वेशन में लिखते हैं. दूसरा स्टेप KVL ऑफ द इनपुट. जब इनपुट जो KVL होगा V is equal to I into R. R की वैल्यू वहां पे आप देखोगे तो ओम दिया हुआ है, तो इसको हम I2 लिखें. इसी तरह इक्वेशन 3 को इक्वेशन उसी तरह इक्वेशन 3 की जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 2 में देंगे, इक्वेशन 2 में देंगे और दूसरी तरफ 4 को 1 में देंगे. तो इससे हमारा जो Z1 की वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी. इस तरह से हमारा Z1 का वैल्यू 5 ओम आया. 5 ओम आप देख सकते हैं कि RS का वैल्यू जो पहले भी वो पता था कि 5 ओम आनी चाहिए. तो ये यहाँ पे जब हम सॉल्व किए तो RS की वैल्यू 5 ओम आई, जो कि प्रूफ हो जाता है. तो ये सिंपल सा सर्किट था जिससे हम लोग ये निकाल सकते हैं. अगर हमें बोला जाए कि आप V2 by Vs at maximum power transfer voltage drop in Z1 is half of Vx. ये इक्वेशन अगर आपको निकालना होगा तो V1 is equal to आप इक्वेशन में पुट करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जितना भी वैल्यू दिया होता है वहां से आप करंट गेन, वोल्टेज गेन, आप सारा कुछ निकाल सकते हैं. और ये सिंपल आपका आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि मैंने करंट गेन निकाला है, Ag is equal to V2 by Vs. V2 की वैल्यू हम पर कटा था, Vs की वैल्यू हमने निकाला और इस पर किया. तो इस तरह से हम सिंपल सबको यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है. जो आपसे पूछा जाएगा वही 5-6 कैरेक्टरिस्टिक है, उसी 5-6 कैरेक्टरिस्टिक सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं और उसी को आपको बताना है. तो ये फॉर्मूला टिप्स आपको याद होनी चाहिए. जहाँ पे याद होने करने वाली चीज है वो पहले से बता दी जाएगी, आप उसको थोड़ा मेमोराइज कर लीजिएगा, आसान होगा. अब जैसे एक एग्जाम्पल